ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کام کو ضرور ٹالتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں آپ یا کوئی اپنے کاموں کو کیوں ٹالتا ہے؟ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تاخیر یا التوا کی عادت پر قابو پانے کے طریقے بتائیں، پہلے اس کی وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر میں کسی حد تک اس کی وجہ سستی ہے یا کاموں کی ناپسندیدگی ہے۔ نفسیات میں کافی عرصے سے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ جو کوئی کاموں میں تاخیر کرتا ہے اس کو وقت کے بارے میں شدید غلط فہمی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کسی کام کو کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ کچھ کے پاس شاید وقت ہو بھی، مگر زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ تاہم جب لوگ کسی کام سے نفرت کرتے ہیں یا جب لوگ کسی کام کو ناخوشگوار انداز میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہ کام سخت بورنگ تکلیف دہ ہوگا، تو تاخیر کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ حالیہ تحقیق میں تاخیر کو مشکل حالات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ التوا کی عادت کسی مشکل سے بچنے کے لیے ہو، مگر اس سے مشکلات کم نہیں ہوتی مگر مزید بڑھ جاتی ہیں۔ التوا سے پریشانی بڑھتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے اور انسان کی پیداواری کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تاخیر کرنے کے رویے سے نیند کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جو کہ تاخیر نہ کرنے والوں میں کم ہوتا ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہماری یہ ٹالنے کی عادت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے بڑی کامیابیوں کا منہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس عادت میں بری طرح مبتلا ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ پہلے تو اس عادت میں گرفتار ہی نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو وہ اس پر جلد قابو پا لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان عظیم کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ ٹالنے یعنی التوا کی عادت میں مبتلا ہے۔ ٹالنے کی وجہ سے ہم بہت سے مواقع یعنی اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور کئی بڑے نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے، کامیاب لوگ کام جلد شروع کرتے ہیں اور اسے جلد ہی پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ امیر تیمور نے ایک جگہ کہا تھا کہ میں اس لیے فاتح ہوں کہ میں اپنے آج کے کام کل پر نہیں ٹالتا۔ اگر تاخیر کرنا عادت بن جائے تو خود اعتمادی میں بہت واضح کمی آ جاتی ہے، جو آگے چل کر احساس کمتری کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے کہ انتظار کرنے کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر زیادہ انتظار کرنے سے وہ باسی بھی ہو جاتا ہے اور صحت بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کاموں کو تاخیر سے کرنے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی حد تک اس عادت میں مبتلا ہیں تو یہ ویڈیو آپ میں بہت زیادہ تبدیلی لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ ہمارے بتائے ہوئے ان 12 طریقوں پر عمل کریں تو آپ اس عادت سے جلد چھٹکارا بھی پا لیں گے اور کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی۔ نمبر 1، ترجیحی طریقہ۔ کاموں کو ان کی اہمیت اور ترجیح کے حساب سے کرنے کو ترجیحی طریقہ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اہم کام کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے کم اہم کام۔ اس طریقے پر سب سے زیادہ زور اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب 7 Habits of Highly Effective People میں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے کام کو ترجیحی طریقے سے کرتے ہیں تو ٹالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ نے بجلی کا بل جمع کروانا ہے، کوئی ای میل کرنی ہے، بچے کے اسکول میں فون کرنا ہے، گھر کے لیے پھل خریدنا ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے کون سا کام آتا ہے۔ اگر بجلی کے بل کی تاریخ ختم ہونے والی ہے تو اس کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں، پھر ای میل اور بچے کے اسکول میں فون، آخر میں گھر جاتے ہوئے گھر کے لیے پھل لیتے جائیں۔ اس طرح آپ اپنی ٹالنے کی عادت سے بچ سکیں گے۔ نمبر 2، سزا کا طریقہ۔ ایک بہت دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی کام کو
इल्तवा की सूरत में अपने आप को सज़ा का मौजब ठहराएं, यानी अपने आप को अपने पसंदीदा काम ना करने की सज़ा दें। मसलन अगर आपको कोई रसाला पढ़ना है या फिल्म देखनी है या किसी से गपशप करनी है, तो आपको चाहिए कि अगर आप किसी काम को टाल जाते हैं तो अपने आप को सज़ा का हकदार ठहराएं। यहाँ ज़रूरी बात है कि आप इस सज़ा पर अमल दरामद भी करें। सिर्फ ये कि मैं कसूरवार हूँ कहने से काम नहीं चलेगा। इस तरह आप दूसरी दफ़ा उस काम को टाल नहीं सकेंगे। नंबर 3, मदद का तरीका। किसी काम को मुकम्मल करने के लिए मखसूस डेडलाइन मुरतब करें। फिर कोई ऐसा शख्स ढूंढें जो जवाबदेह होने में आपकी मदद करे। ये आपके बॉस या मौक्किल से वादा हो सकता है कि आप किसी ख़ास तारीख तक मुकम्मल काम कर देंगे, या कोई कोच हो सकता है जो आपको पटरी पर रहने में मदद करता है, या महज एहतसाब का साथी तलाश करें। कई ऐसे काम होते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते, इसलिए भी हम उनको टाल देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों से मदद और ताउन लें। इस तरह वो काम भी हो जाएंगे जो आप खुद से नहीं कर सकते। जैसे आप बिजली का बिल जमा करवाना चाहते हैं, बच्चे के स्कूल में फ़ोन करना है, घर के लिए फल लाना है, ईमेल करनी है, तो आप इन कामों को दूसरों की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे बिजली का बिल अपने हमसाए के साथ बांट लें और फल लाते हुए उसकी मदद कर दें। इस तरह बच्चे के स्कूल में फ़ोन अपनी बीवी से या शौहर से करवा लें। ईमेल पहली फुर्सत में कर लें। यकीन जानिए, कामयाब लोग सारे काम खुद नहीं करते। कई दफ़ा कोई दूसरा आपके काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, इसलिए उससे करवाएं। इस तरह आप टालने की कोफ्त से बच सकेंगे। नंबर 4, 5 मिनट का तरीका। ये तरीका बहुत मौसर तरीका है। इस तरीका में आपको उस काम पर जिसको आप टालते आ रहे हैं या जो टालना चाहते हैं, उस पर सिर्फ 5 मिनट सर्व करने हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप अपने आप को सिर्फ 5 मिनट के लिए तो उठा लेंगे और फिर उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। अगर नहीं भी मुकम्मल होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मसलन आप अपने वर्जिश करने के काम को टालते रहे हैं। इस तरीके की मदद से आप वर्जिश करना शुरू कर देंगे। ये तरीका आसान और दिलचस्प भी है और बहुत कारआमद भी। नंबर 5, फ़वाइद के जायज़े का तरीका। जब आप टालने की आदत से दो चार हों तो इस तरीके को ज़रूर आजमाएं। इसमें थोड़ा सा होमवर्क है और वो ये है कि आप कामों के फ़ायदे और नुकसान का अंदाज़ा लगाएं। यानी जिन कामों को पहले करने में फ़ायदा है उनको कर दें और जिन कामों में कम फ़ायदा है उनको अगली दफ़ा पर टाल जाएं। आप एक फ़हरिस्त भी बना सकते हैं और कामों को मुलतवी करने की वजूहात भी लिख सकते हैं। इस तरह आप उन वजूहात को ख़त्म कर सकेंगे जिनकी वजह से आप इस टालने वाली आदत के शिकार हैं। नंबर 6, तकसीम का तरीका। कुछ कामयाब लोग अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और इस तरह वो अपने हर काम के लिए वक्त निकाल पाते हैं। हमें जब भी कोई बड़ा या मुश्किल काम करना पड़े तो ज़्यादातर हम उसे टालते हैं और इस तरह वो काम होने से रह जाता है। जैसे कि आपका बच्चा किसी मज़मून में कमज़ोर है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा वक्त निकालना मुश्किल है, तो आपको चाहिए कि हर रोज़ थोड़ा वक्त देते रहें। इस तरह आपका ये काम भी हो जाएगा और आपका बच्चा भी मुश्किल से निकल जाएगा। जब कोई काम बड़ा लगता है तो ताख़ीर अक्सर उसके बाद होती है, तो आप इस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो एक खाका बनाने और हर बाब की निशानदही करने, अबवाब में मौजूद हिस्सों का पता लगाने
और फिर एक वक्त में एक हिस्सा लिखने का अहद कर सकते हैं। इसको इस तरह से ख़त्म करने से आपको आसानी होगी और ख़ुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस करने में मदद मिलेगी। नंबर 7, हतमी वक्त का तरीका। जब आपको एक से ज़्यादा काम करने हों तो आपको चाहिए कि हर काम को मुकम्मल करने का वक्त मुकर्रर कर लें। ये एक आसान और आज़मूदा तरीका है। जब आप किसी काम का वक्त या तारीख तय कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर एक ख़ास किस्म का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जो किसी भी इंसान को उस काम के लिए मुतहर्रिक करने में मदद करता है। इस तरह आप अपने तमाम काम अपने वक्त पर करने के लिए तैयार रहेंगे और आपको टालने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। नंबर 8, सवालिया तरीका। ताख़ीरकार तवील मुद्दती नताइज के बरखिलाफ मुख्तसर मुद्दत के फ़वाइद पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके बजाय इस पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इसको मुकम्मल करने के क्या फ़वाइद हैं। अगर आप किसी अलमारी की सफाई करना छोड़ रहे हैं तो इस खाली जगह में घूमने फिरने का अंदाज़ा करें। जब उसमें कमी हो जाती है और ये कितना अच्छा महसूस होगा, और गौर करें कि अशिया बेचकर आप कितना पैसा कमाएंगे। या जब मोहताज अफराद बतौर अतिया इन चीज़ों को वसूल करेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा। अगर ये एक मश्क प्रोग्राम है जिससे आप गुरेज कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा तवज्जो दें। किस तरह वर्जिश करने से आपको ज़्यादा मुस्बत तवानाई हासिल हो सकती है, आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल की हैसियत से काम करेंगे। नंबर 9, हकीकत पसंदी का तरीका। जब आप अपना शेड्यूल मुरतब करते हैं तो कामयाबी के लिए अपने आप को मुरतब करें। प्रोजेक्ट्स अक्सर तवक्को से ज़्यादा वक्त लगाते हैं और अपने आप को आसान बनाने के तरीके तलाश करें। मिसाल के तौर पर आप सुबह के आदमी नहीं हैं तो अपने आप से ये उम्मीद ना करें कि आप महीनों से रखे हुए वर्जिश प्रोग्राम को शुरू करने के लिए 1 घंटा जल्दी उठेंगे। दोपहर के खाने के वक्त या खाने से पहले इस सरगर्मी पर वक्त बिताना बेहतर होगा। नंबर 10, इनामी तरीका। किसी काम को करने की सूरत में अपने आप को इनाम देने का तरीका भी कई दफ़ा कारगर साबित होता है। आपको सोशल मीडिया पर कुछ वक्त गुजारना है तो पहले अपने काम मुकम्मल करें, फिर अपने आप को इनाम की सूरत में इजाज़त दें कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वक्त गुजार सकते हैं। नंबर 11, खुद को माफ़ करने का तरीका। माजी के बारे में अपने आप को कोसना बंद करें। अपने ख्यालात जैसे मुझे पहले शुरू करना चाहिए था या मैं हमेशा ताख़ीर करता हूँ, मैं इतना हार गया हूँ, मामलात को मज़ीद ख़राब कर देगा। तहकीक से पता चला है कि माजी की ताख़ीर के लिए अपने आप को माफ़ करना आपको किसी काम को मुकम्मल करने में मदद फराहम करेगा। आप अपने फ़ायदे के लिए माजी की ताख़ीर को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? इस बात का तयन करें कि आपसे क्या बच गया है। खौफ, तनाव, तरक्की के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा करें। उसके बाद मौजूदा और मुस्तकबिल में उन रुकावटों का अज़ाला करें। मिसाल के तौर पर ये ख़दशा था जिसने आपके इल्तवा में हिस्सा लिया, तो अगली बार आप ज़्यादा बाइख्तियार और कम खौफज़दा महसूस करने के लिए आप क्या इक़दामात उठा सकते हैं। नंबर 12, कमाल पसंदी का तरीका। परफेक्शनिज्म एक तमाम या कुछ भी नहीं की ज़हनियत है। कुछ या तो कामिल है या नाकामी है। कमाल पसंदाना रुझानात
رکھنے والے افراد آگے بڑھنے کے لیے چیزوں کے کامل ہونے تک انتظار کرتے ہیں، لہٰذا اگر یہ کامل نہیں ہے تو آپ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یا اگر یہ بہترین وقت نہیں ہے تو آپ کو یقین ہے کہ آپ شروع نہیں کر سکتے۔ یہ ساری یا کوئی ذہنیت آپ کو کام شروع کرنے یا مکمل کرنے سے روک سکتی ہے۔ اس کی بجائے کامل سے بہتر ہونے پر توجہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بھی بہتر کے لیے جدوجہد کریں، بہتری پیدا کریں یا اپنے آپ کو بہترین حالات کے ساتھ مرتب کریں، لیکن اسی کے ساتھ ہی آپ اپنا کام انجام دینے پر بھی توجہ دیتے رہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی دن پھر کبھی نہیں ہے، لہٰذا پھر کبھی کو آج کریں۔ اپنے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کریں اور اپنی ہر پیش رفت پر فخر کریں۔ یہ تھے 12 طریقے جن پر عمل کرنے سے آپ ٹالنے کی عادت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے جو اپنے کام وقت پر کرتا ہے، جو ٹالتا ہے اسے ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ طریقے کیسے لگے اور آپ ان میں سے کس طریقے پر فوری عمل کرنے والے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اس طرح آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے اور خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔